What I'm asking is, can you see the notes on your screen? Yes. Response दो जरा बच्चों. मानो. Yes. Okay. Ethan. Okay then. So students, last time we have completed. जो दो चार लोगों ज्वाइन करने बाकी है तब तक मैं जस्ट रिवाइज कर देता हूँ. Last year, last lecture, I'm sorry. Last lecture we have completed the concept of free consent. When the consent is free or when the consent is not free. Okay. 4 factors in details we have discussed, that is coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. I think that was covered up to last lecture, and I think I have started with just a new concept, that is a mistake. Okay, mistake of fact, mistake of law. A very short discussion on that, but it is very important. Again, from the formation of contract, valid contract. Okay, sometimes parties makes mistakes while making contract. So what will be the legal effect of that mistake on the contract made by the parties? Okay, what will be the validity of that contract which is based on mistake? I think that we are supposed to discuss today. But before I start again with my discussion, if you have read some part of it, last 2 to 3 lectures, I think we were discussing only coercion, undue influence, fraud, and misrepresentation. So, the students who have joined the lecture till now, do you want to ask any doubt up to last lecture in that 4 factors? Just respond by giving yes or no, or else I will continue. If you have any doubt, otherwise I will continue. Okay. I think you don't have any doubt. So let us start then. Students, after discussing the 4 factors, okay, so let us discuss the concept. विकास सर, ऐसा कुछ हुआ तो मैं फोन करता हूँ. आ जा. नहीं मैं रुचि को भेजता हूँ, उसको जमे. ये इनिशियल का तो हो जाएगा. Hello, हाँ. Students, so I start. Student, let us discuss mistake. बच्चों, when we use the word mistake, बोलते हैं ना हम लोग गलती हो गई. तो normally when I use the word mistake, so let us assume it is always in ignorance. It is not done purposefully. It is some sort of erroneous act, error act. I hope you understand. And ज़्यादातर गलतियां माफ की जाती हैं, ऐसा सुना है हम लोगों ने. So, if I just try to give the meaning of mistake, so it is nothing but an erroneous act, error, है कि नहीं? ज़्यादातर इसका डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो नॉर्मली कोई पर्पसफुली नहीं करता है मिस्टेक. पर्पसफुली करते तो फिर वो मिस्टेक नहीं. ओके, व्हाट आई वांट टू से इज, सो इवन कॉन्ट्रैक्ट करते समय बच्चों मिस्टेक होने के चांसेस है. एंड आई थिंक यू डू एग्री विद दैट स्टेटमेंट कि हो सकती है कि पार्टीज मेक मिस्टेक्स रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, regarding quality, quantity, person. Okay, mistake can be at any sort, of any sort. Okay, mistake is ultimately mistake. But when I consider Indian Contract Act 1872, first of all we have to bifurcate. There are 2 types of mistake. First of all, one is a mistake of law, जो आज डिटेल में हो जाएगा, and one is a mistake of fact. When I use the word of fact, जिसको क्या हिंदी मराठी में हम क्या बोलते हैं, तथ्य.
तथ्यों पर आधारित। तो कभी कभी जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन थीम रहता है, फैक्ट रहता है, उसी को लेकर मिस्टेक हो जाती है। सो फर्स्ट वी ट्राई टू डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब हम बात करते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो बच्चों इट कैन बी रिलेटेड टू, मैंने कहा ना, सब्जेक्ट मैटर। पर कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट का मेन जो हीरो रहता है। जैसा कि आप और मेरे में घर खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, घर, हाउस, तो हाउस बिकम सब्जेक्ट मैटर। ओके, तो फिर सब्जेक्ट मैटर के क्वालिटी, सब्जेक्ट मैटर का एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, टाइटल, प्राइस, इसको लेकर फिर आगे का डिस्कशन होता है। ओके, गुड्स को लेकर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो गुड्स की क्वालिटी, उसकी एग्जिस्टेंस, उसके आइडेंटिटी, उसका टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, ये सब को लेकर बच्चों आगे डिटेल होता है। सो व्हेन आई यूज द वर्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक. लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड दिस. One is a unilateral mistake, one is bilateral mistake. So when I use the word unilateral mistake, so in this type of mistake, yeah, in this type of contract, you can say, I use the word contract now, one party makes mistake, but other party don't. And one party is under mistake, and it is under mistake of fact. तथ्यों को लेकर कुछ गलतियां कर रहा है, बट दूसरी पार्टी नहीं कर रही, दूसरी पार्टी सही है। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आता है, when there is a unilateral mistake of one party, so you can't make that contract as void. You can't treat that contract as void. When I use the word contract as void, that means not contract as void. That means, बच्चों, it has to be treated as valid contract. I think last lecture I have discussed this. I have taken the example of that necklace. Okay, artificial necklace. सामने वाला अगर उसको हीरो का हार समझकर खरीद कर लेके जाता है, तो ये उसका गलती है। कोई इंडियन मेड गुड्स को इंपोर्टेड गुड्स समझ के लेके जाता है, आप खुद ही सोच के, तो दैट इज नॉट मिस्टेक ऑफ द सेलर, दैट इज मिस्टेक ऑफ द बायर। तो वो चाहकर भी आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। When I use the word contract कैंसिल नहीं कर सकता, मतलब that contract becomes valid anyhow. Okay? वो कैंसिल करेगा तो सामने वाला केस कर देगा. That is what I use the word valid contract. But assume, students, but assume कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो फैक्ट है, सब्जेक्ट मैटर, उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर दोनों पार्टियां, बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक। तो आप जरा आंसर टाइप करो, मैंने लास्ट लेक्चर क्या बताया था। When both the parties are under mistake of fact, where both the parties are under mistake of fact, it is called as bilateral mistake. And what is the legal validity of the contract? I remember कि I have explained this part. Okay? आपके अभी फिलहाल डायग्राम में दिख नहीं रहा होगा, but I have explained. I know that. Yes. So the answer is on the screen. मुझे दिखाई दे रहा है आपका आंसर. ऑलमोस्ट 8 to 10 स्टूडेंट्स हैव टाइप्ड देयर आंसर. बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. यू आर राइट. बच्चों, देयर इज नो प्लेस फॉर वॉइडेबल वर्ड. वॉइडेबल वर्ड बहुत कम जगह पे यहाँ पर यूज होता है. ओके, वो कैसे यूज होता है दैट ऑल्सो आई विल टेल यू. बट फिलहाल आप एकदम परफेक्ट रखो ना आंसर माइंड में कि इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, first of all, see, this is how you have to remember. If there is a mistake of fact while making contract, first you identify whether it is unilateral mistake or bilateral mistake. When it is unilateral mistake, the contract need not be void. When I use the word need not be void, it is enough to understand that it is valid. Okay?
it is enough to understand that it is I am talking about valid contract, can be enforceable. But when you find out that there is a mistake on both the parties, okay, and I have used the statement also कि फैक्ट को लेकर जब बायलैटरल मिस्टेक होता है तो लॉ अज्यूम करता है कि एक्चुअली देयर इज नो कंसर्न, and when there is no concern, there is no question of any contract, and when there is no question of any contract, void and valid हम बोल ही नहीं सकते. बट यहाँ पर ऐसा बोलने के बजाय डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि अगर मिस्टेक होता है दोनों पार्टी को तरफ से तो बच्चों ये बायलैटरल मिस्टेक है एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एब्सोल्युटली वॉइड. इफ यू कैन सी द डायग्राम गिवन, आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है, बायलैटरल में राइट हैंड साइड में देखो क्या है, मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. फिर वो चाहे लीगल परफॉर्मेंस हो या फिजिकल परफॉर्मेंस हो, अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को लेके मिस्टेक है, बच्चों रिकॉल करो स्टार काउंटिंग वाला एग्जांपल. मैंने राहुल सर को कहा स्टार काउंट करके बताओ कितने हैं, आई विल पे यू 1 करोड़ रुपीज. ही एग्रीड, यानी ही एक्सेप्टेड माय ऑफर, यानी हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है. लेकिन बच्चों ये बताओ हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है स्टार काउंट करना, इज इट पॉसिबल? क्या ये परफॉर्मेंस पॉसिबल है? मुझे भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, राहुल सर को भी पता है पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स वी बोथ द पार्टीज आर मेकिंग मिस्टेक. When both the parties are making mistake of fact, it is fact that stars are next cannot be counted. It is impossible to count stars in the galaxy. Okay, that is fact, and we both parties are making mistake. हम दोनों मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्मेंस की. इसका मतलब मेरे और राहुल सर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है स्टार काउंटिंग का, बच्चों it comes under bilateral mistake, and when it comes under bilateral mistake, you know the result of the answer question, correct? You know the result of this contract. It becomes absolutely void because both the parties are under mistake of fact. And what is that fact? That stars are cannot be counted. Stars count कर ही नहीं सकते हम गैलेक्सी में जो भी है, बरोबर है. एंड फिर बच्चों मैंने रोल्स रॉयस एंड मर्सिडीज का भी एग्जांपल दिया था, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा मान लीजिए. सो वी हैव बोथ द एग्जांपल्स फॉर बायलैटरल मिस्टेक. यूनिलैटरल मिस्टेक के लिए मैंने नेकलेस का एग्जांपल दिया है, तो आप वो याद रख सकते हैं. ओके बच्चों रीड करेंगे अभी थोड़ी देर में. ओके एवरीथिंग विल बी रेड नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायग्राम है उसको मैं जस्टिफाई कर दूं मेरे हिसाब से. बच्चों अभी मुझे ये बताओ, वन मिनट.
नेक्स्ट चालू रखो, चालू रखो। नहीं वो बंद हो गया तो क्या बोलूँ, लोगों को सुनाई देना चाहिए। अपने आप वो बंद हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो परमेश्वर, कनेक्ट करो, एक मिनट में फोन करो। हरिशान कैसे हो? सल्फेट का सब डिस्कनेक्ट बंद ही हो गया। वो उसको कुछ समझता नहीं हो, पता नहीं क्या करता है। विकास को फोन करा तो उठाया नहीं वो। रुचिक सर है इसलिए उसको कुछ नहीं जानता है। सर, ये किसी को नहीं जानता है। ये जिन्होंने बनाया उनको भी नहीं पता चलता है क्या एरर है, वो तो हम लोग सर्च करते हैं। नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो वही उसको बोला कि विकास को बोला ना। नहीं ये चल रहा था, ये उधर का नहीं, ये होगा। तो यहाँ पे फिर कैसे चला था कलेक्शन? नहीं यहाँ पे नहीं चला गया। नहीं यहाँ पे चला गया, देखो उसने ये किया इधर है ना, यहाँ पे चला गया इसलिए बच्चों को गया। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कुछ किया ही नहीं, यहाँ पे मैं क्यों हाथ लगाऊंगा। यहाँ देखा डिस्कनेक्टेड दिख रहा है करके विकास को फोन करने लगा। यहाँ कैसे क्या मालूम, यहाँ तो मैं हाथ भी नहीं लगाया। यहाँ हाथ लगाने का सवाल ही नहीं ना, दिख रहा है ना उसको। सिर्फ स्क्रीन पे जो लगाया है उतना ही, ऊपर नीचे करने। नहीं वो जो मेरा नोट्स है ना, बस उसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, बाकी कुछ में हाथ लगाने का सवाल है। हेलो बच्चा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो तो हेलो, आवाज आ रही है ना बच्चा? हाँ यस। उधर ही है, इस पे डेस्कटॉप पे। इसका फोटो खींच के रखा है, भेज देना तो भेज देना परमेश्वर।
आदर मिश्रा एक मिनट चलो हेलो। हाँ, नाउ स्टूडेंट्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी रीड करेंगे नोट्स को। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखो, अभी डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड में देखो, मिस्टेक ऑफ लॉ करके लिखा है। बच्चों, व्हेन आई यूज द वर्ड मिस्टेक ऑफ लॉ, तो यू हैव टू फर्स्ट बाइफरकेट कि ये जो मिस्टेक ऑफ लॉ पार्टीज कर रहे हैं, ये फैक्ट को लेकर नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बट लॉ को लेकर कर रहे हैं। एंड मिस्टेक ऑफ लॉ दो प्रकार का होता है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। इफ यू कैन रिमेम्बर माई इनिशियल लेक्चर्स, जब मैं कुछ फेमस स्टेटमेंट्स बता रहा था, आई डोंट नो इफ यू कैन रिमेम्बर दैट, या मैंने बोला था कि नहीं। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ट्राई टू रिमेम्बर द सेंटेंस। बच्चों, आर यू लिसनिंग टू मी? टाइप करो एक दो जन। Ignorance of law is no excuse. When I use the word ignorance of law is no excuse, see the sentence, ignorance of law is no excuse. That means मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, हम इंडियंस लॉ के लिए बात कर रहे हैं। बच्चों, इंडिया का लॉ हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को बाय डिफॉल्ट मालूम होना ही चाहिए। यह अजम्पशन है कि इंडिया का लॉ हर एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं, मुझे लॉ नहीं पता था, तो ये एक्सक्यूज आपका माना नहीं जाएगा। आई हैव गिवन एग्जांपल ऑल्सो कि मान लो कि उत्तर प्रदेश से कोई फर्स्ट टाइम मुंबई आया, मान लो, एंड आकर वो लोकल ट्रेन में चढ़ गया, सेकेंड क्लास टिकट लेकर फर्स्ट क्लास में चढ़ गया गलती से। उसको पता नहीं था रेड कलर का वो जो स्ट्रिप्स वगैरह है फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट टाइम आया है ना वो मुंबई, तो वो फर्स्ट क्लास में चढ़ गया एंड उसको टीसी ने पकड़ लिया। तो आपको क्या लगता है, टीसी उसको छोड़ देगा कि उसे पेनल्टी लेगा? फर्स्ट यू गिव मी दिस आंसर। वो यूपी से आया वाला व्यक्ति कहेगा कि मैं मुंबई में फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे पता नहीं था ये लॉ, मुझे छोड़ दो, अब इसके बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आपको लगता है वो छोड़ देगा क्या? नहीं, पेनल्टी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? कारण ये है कि उसने जो किया है वो मिस्टेक ऑफ लॉ है, इंडियन लॉ मिस्टेक। एंड इंडियन लॉ सबको पता होना ही चाहिए, ऐसे एजम्पशन है। आई यूज द वर्ड एज्यूम, एजम्पशन, प्री एजम्पशन करता है लॉ कि इंडियन लॉ सबको मालूम होना ही चाहिए। इज दैट ओके विथ एवरीवन? तो उससे फाइन लिया जाएगा, उसे पेनल्टी ली जाएगी। वो कितना भी बोले कि मुझे मुंबई का लॉ पता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम आया, ओके, ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ ये एक्सक्यूज नहीं है। ओके, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जैसा हम लोग नहीं पढ़ते कभी, तो माँ बाप बोलते हैं ना, डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वही है बस। हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अगर मिस्टेक इंडियन लॉ का हुआ है तो फाइन लगा देना, पेनल्टी लगा देना, इसका मतलब क्या हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो गया बच्चों, केस हो गया आपके ऊपर इनडायरेक्टली। ओके, यहाँ, हाँ, मैं यहाँ बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि माइनर बच्चे को पकड़ा जाता है ना विदाउट टिकट, तो उसके ऊपर केस नहीं होता है। उसको ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है वैसे स्टेशन पे कि उसको 1-2 घंटा बिठा के रखते हैं उधर ही, बाद में छोड़ देते हैं। ओके, बिकॉज उसके ऊपर वैसे केस होना नहीं है माइनर चाइल्ड के ऊपर। लेकिन कोई माइनर ना हो तो कहीं का भी हो इंडिया का, बच्चों, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ओके, तो ये हो गया बच्चों इंडियन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट बच्चों। ओके, विद अ वेरी फेमस स्टेटमेंट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। उसके बाद बच्चों मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। बच्चों, क्या हम एजम्पशन कर सकते हैं यहाँ कि हमें फॉरेन कंट्री का, हर फॉरेन कंट्री का लॉ मालूम होना ही चाहिए?
व्हाट इज योर व्यू पॉइंट बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कैन वी अज्यूम या प्री अज्यूम कि हमें फॉरेन कंट्री ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी सबका लॉ मालूम होना ही चाहिए? नॉट पॉसिबल ना बच्चों। वी कैनॉट अज्यूम इन दिस वे कि हमें फॉरेन कंट्री का भी लॉ मालूम होना चाहिए। हमें फॉरेन कंट्री का लॉ नहीं मालूम होता है कि नहीं? वी कांट अज्यूम ऑल्सो। इसलिए बच्चों इसके आंसर को समझने के लिए जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि डायग्राम में मैंने कहा ना, डायग्राम में सिर्फ जानकारी दी है, उन्होंने आंसर नहीं दिया है। तो बच्चों अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होता है, ठीक से सुनना लाइन, अभी मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होता है तो लॉ उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझता है, राइट हैंड साइड हो जाएगा। लॉ उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझेगा, लॉ उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझेगा। एंड व्हेन आई यूज द वर्ड लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो आपको क्या लगता है, ये यूनिलैटरल मिस्टेक ट्रीट करेंगे कि बायलैटरल? आई जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, you just guess your answer and give me. If mistake of foreign law is treated as mistake of fact, तो बच्चों ये बायलैटरल मिस्टेक होगा कि यूनिलैटरल? बायलैटरल मिस्टेक होगा। वेरी गुड ओम, परफेक्ट। नहीं, ओम का आंसर सही है, बायलैटरल मिस्टेक एजम्पशन होगा। एंड बच्चों जब बायलैटरल मिस्टेक एजम्पशन होगा तो आंसर क्या होगा? वॉइड। आंसर क्या होगा? वॉइड। ट्राई टू गेट दैट पॉइंट, आंसर वॉइड होगा। ओके तो बच्चों मैं इसका क्या मतलब है कि एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्टोरी देता हूँ। बच्चों जैसे कि अपनी इंडियन टीम थी, समझ गए? अपना इंडियन टीम, ऐसा भी विराट कोहली वगैरह क्रिकेटर वगैरह इंडियन टीम है ना, वैसे बच्चों 80s वगैरह में, 90s में और भी एक टीम थी, मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, मनोज प्रभाकर, सचिन तेंदुलकर नए नए आए थे, संजय मांजरेकर, ये ऐसी एक टीम हुआ करती थी हमारे इंडिया में। एंड एक बार वो लोग है ना, 80s 90s की बात है, वो लोग न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलने गए थे। दे वेंट टू न्यूजीलैंड टू प्ले क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल्स एंड ऑल। एंड बच्चों आपको मालूम है क्रिकेटर्स लोग को कुछ हॉलीडेज भी मिलता है बीच में, 1-2-4 दिन, उसमें वो लोग ना घूमते हैं, दे एंजॉय, दे डू शॉपिंग एंड ऑल। तो वहां एक बार वो लोग गए शॉपिंग करने, तो वहां पर बच्चों अभी अपने यहाँ ना बिग बाजार, डी मार्ट है, तो 80s वगैरह में हमारे इंडिया में ऐसा सिस्टम था नहीं, यू नो दैट। अभी आया, लास्ट 10 साल में आया, तो वहां पर वो सिस्टम पहले से ही है। तो ये लोग एक शॉप में चले गए, बराबर, डी मार्ट टाइप या बिग बाजार टाइप। एंड इंडिया के जो क्रिकेटर थे, मनोज प्रभाकर बॉलर थे, वो सॉक्स होता है ना, जो सॉक्स उन्होंने चॉइस किया, लेकिन वो जो ट्रॉली लेके जाना भूल गए लोग। इनको पता ही नहीं था कि ट्रॉली लेके जाने का, उसमें सामान रखने का, काउंटर पे आने का एंड पेमेंट करके सामान लेके जाने का, ये इनको पता ही नहीं था, क्योंकि इंडिया में सिस्टम ही नहीं था ऐसे। इट वॉज टोटली न्यू फॉर देम। तो मनोज प्रभाकर ने जब 2 सॉक्स चॉइस किए, तो उन्होंने क्या किया, उसको ट्रॉली तो लिया नहीं था, तो उन्होंने उसको अपने पॉकेट में डाल दिया। अब पॉकेट में डाल दिया तो कैमरास वगैरह ऑन थे, सीसीटीवी कैमरास, तो उनको क्या लगा कि दिस क्रिकेटर चोरी कर रहा है, उनको ऐसा फीलिंग आया एंड दे कॉल्ड अप द पुलिस। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट Please. तैयारी का साथी।
पुलिस वाले जब वहां आए एंड उनको पकड़ लिया गया मनोज प्रभाकर को, तो बोला कि आप चोरी कर रहे हो। तो मनोज प्रभाकर ने कहा नहीं, मैंने तो सामान लिया है, मैं काउंटर पे जाके इसका पेमेंट करने वाला हूँ। नहीं, बोलते आपने पॉकेट में डाला। बोलते मैंने कुछ लिया ही नहीं था लेने के लिए, ने आपको ट्रॉली लेनी चाहिए थी। तो क्रिकेटर्स लोगों ने बोला कि हमको बताना चाहिए था, हमको मालूम नहीं यहाँ का सिस्टम क्या है, यहाँ का लॉ क्या है, यहाँ का लॉ क्या है हमको मालूम नहीं है, हम इंडिया के हैं, इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, है कि नहीं। तो बच्चों, चोरी वहां का न्यूजीलैंड का कोई व्यक्ति करता तो उसको सजा हो जाती, लेकिन यहाँ मनोज प्रभाकर को जस्ट वार्निंग देके छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कैन यू टाइप? पुलिस स्टेशन उनको नहीं, पुलिस का कंप्लेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इनका? क्योंकि बच्चों ये मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है, ये मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है। अगर इसमें मनोज प्रभाकर की गलती है तो बच्चों वहां के बिग बाजार की भी गलती है। उनको बताना चाहिए था ना सिस्टम कि आप ट्रॉली लेके जाइए, दिस इज आवर सिस्टम। उन्होंने भी नहीं बताया, इन्होंने भी नहीं पूछा। गलती दोनों तरफ से है, फॉरेन लैंड में की गई मिस्टेक है ये। तो बच्चों इनके ऊपर केस नहीं हुआ। बहुत ही फेमस स्टोरी है ये। ओके, सो इसको हम कहते हैं इट इज अ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। एंड हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, bilateral mistake of fact, and when there is bilateral mistake of fact तो contract becomes absolutely void. ओके, तो बच्चों ये आपका एंगल है। अब मैंने मिस्टेक को लेकर ज्यादातर डायग्राम डिस्कस कर दिया विद एग्जांपल आल्सो। नाउ व्हाट योर थ्योरी सेज, लेट अस रीड दैट। ओके, क्या लिखा है देखो, दे हैव स्टार्टेड विद द मीनिंग ऑफ मिस्टेक। बच्चों कैन यू सी द स्क्रीन, कैन यू सी द नोट्स? जस्ट टाइप यस नो, one or two student. Yes, okay. So just concentrate on the notes. क्या लिखा है बच्चों देखो, mistake may be defined as innocent. बच्चों मैंने कहा ना कोई जानबूझ के नहीं करता, ये innocently हो जाता है, गलती innocently ही होती है। Defined as innocent or erroneous belief, बराबर है, which leads the party to misunderstand the others. कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, हम बोलते हैं ना गलती हो गई है। ओके, वी मिसअंडरस्टूड ईच अदर। सो मिस्टेक में बी आइदर बायलैटरल और यूनिलैटरल। अब बच्चों नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायलैटरल मिस्टेक इज व्हेन बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर मिस्टेक। यहाँ पर विच एग्जांपल यू आर गोइंग टू रिमेंबर ऑलवेज? तो बच्चों दैट रोल्स रॉयस एंड मर्सिडीज। I made an offer to sell my Mercedes and you accepted my offer to purchase my Rolls Royce. So we both the parties were under mistake of fact. Therefore contract becomes void. You can also remember the example of horse. Try to understand. जिस horse के लिए हम contract करते हैं, हम दोनों को पता नहीं कि that horse is dead. ये recall करो dead वाला। Both the parties are under mistake, bilateral mistake of fact, and therefore contract becomes void. फिर बच्चे यूनिलैटरल मिस्टेक का मीनिंग दिया देखो। यूनिलैटरल मिस्टेक इज वन वेयर ओनली वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर मिस्टेक, वेयर ओनली वन पार्टी इज मेकिंग मिस्टेक बट अदर इज नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। सो द पार्टी हु मेक्स मिस्टेक हैज टू सफर, है ना। तुम अंडर मिस्टेक गलती से समझ के लेके जाते हो कि ये ओरिजिनल पल्स सेट है, तो दैट्स नॉट माय मिस्टेक। आपने कुछ पूछा भी नहीं, मैंने कुछ बताया नहीं आपको, पूछते तो मैं बता देता आपको, है कि नहीं। तो बच्चों एग्जांपल्स आर गिवन टू यू, जस्ट थियरी क्लियर है कि नहीं उतना कंफर्म कर लो। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो बच्चों व्हाट विल बी द लीगल इफेक्ट, लेट अस डिस्कस। Mistake is some unintentional act. बच्चों this is very important, it is always unintentional act. कोई भी unintentional act, omission
or error arising from unconsciousness, ignorance, forgetfulness, imposition, or misplaced confidence. It may be of two kinds: mistake of law, mistake of fact. And what the details are given? It is essential for the creation of contract that both the parties should agree to the same thing in the same sense. Can you recall, बच्चों? ये लाइन पढ़ा तो आपको किसका याद आया? Come on, let us. You type your answer. I read once again. It is essential for the creation of contract that both the parties should agree to the same thing in the same sense. Concerned. Very good. Perfect. When there is no consent between the parties, we say it is bilateral mistake. Perfect. Thus, if two persons enter into a contract, each of them thinking about different subject matter, no contract will arise. That is what the example of Mercedes and Rolls-Royce. Two persons are entering into contract with each other, but both are thinking of different subject matter. And when both are thinking of different subject matter, but no contract will arise because there will be no consent. There is a bilateral mistake. As a result, mistake may lead towards voidness. As a result, mistake may lead contract towards voidness. मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट को void कर देगा, कर सकता है, कर रहा है. एंड अब बच्चों मिस्टेक ऑफ लॉ लिखा है, देखो. A mistake of law does not render the contract void. बच्चों ये मैं लास्ट लेक्चर से सेंटेंस यूज कर रहा था, याद करो. A mistake of law does not render a contract void. What do you mean by that? Does not render a contract void. Can you type what do you mean by this? A mistake of law does not render a contract void. I'm waiting for your answer. इसका मीनिंग वैलिड निकल सकता है. यस, मैंने अभी भी कहा था बच्चों, इंडियन मिस्टेक हुआ, इंडियन लॉ का मिस्टेक हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. फॉरेन लॉ का मिस्टेक हुआ तो वॉइड होगा. ओके, मैंने अभी बताया था. A mistake of law does not render a contract void, as one cannot take excuse of ignorance of law of his own country. Own country. यानी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन लॉ हो गया. यानी बच्चों इंडियन लॉ में मिस्टेक करेंगे तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज. आपका लॉ का इग्नोरेंस आपका एक्सक्यूज नहीं है. गेटिंग दैट एवरीवन? Ignorance of law is no excuse. So it makes contract valid. But if the mistake of law is caused through the inducement of another, the contract may be avoided. Another matlab not own country but another country. Okay, but another country. The contract may be avoided. The mistake of foreign law is, but you underline this word. The mistake of foreign law is excusable. मनोज प्रभाकर को एक्सक्यूज किया गया, छोड़ दिया गया. And is treated like mistake of fact. Okay, and is treated like mistake of fact. याद करो, मैंने अभी डिस्कशन किया. Contract may be avoided on such mistake. May be avoided on such mistake. बच्चों when I use the word may be avoided on such mistakes, मतलब contract enforceable नहीं होगा. लेकिन बच्चों माय क्वेश्चन, मनोज प्रभाकर ने वहीं न्यूजीलैंड में रहकर दूसरी बार यही मिस्टेक किया तो, सेम मिस्टेक कमिट किया तो, दैट्स माय एक्स्ट्रा क्वेश्चन टू यू. सो आपका आंसर क्या होना चाहिए? Will now it be excusable? No.
क्यों? तो अब लाइबल फॉर पनिशमेंट हो जाएगा बच्चों। वेरी गुड, क्योंकि नाउ यू नो द लॉ ऑफ न्यूजीलैंड, आपको एक बार बता दिया गया है। एंड द सेम मिस्टेक यू आर कमिटिंग, दैट मीन्स व्हेन यू आर कमिटिंग सेम मिस्टेक इट बिकम्स क्राइम। दैट इज व्हाट माय व्यू पॉइंट इज। ओके, सो बच्चों फॉरेन लॉ में मिस्टेक होता है तो एक्सक्यूजेबल है, इसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझकर, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझकर बच्चों इसको छोड़ दिया जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ये वापस गया ना। ओके बच्चे, ये यहाँ तक समझ में आया सबको? यस नो में आंसर दो। फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है सबको? ओके, सो आई कंटिन्यू। बच्चों फिर आगे क्या लिखा है देखो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, जस्ट अभी समझना है हमको क्या है। वेयर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मिसअंडरस्टूड ईच अदर and are at cross purposes, there is a bilateral or mutual mistake. When both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement is underlined void. That means बच्चे यहाँ पर कौन सी मिस्टेक की बात हुई है? Bilateral. Try to understand. And contract becomes absolutely void. वहीं पर unilateral mistake होता तो बच्चों contract is not necessarily void. I have discussed that part. Okay. Now example is given and the discussion is over on mistake. A offers to sell his ambassador car to B. Who offers to sell ambassador car to B? A. Who believes that A has only Fiat car and B believes that A has only Fiat. Agrees to buy the car. Here the two parties are thinking about different subject matter so that there is no real consent and the agreement is void. बच्चे ये मुझे पढ़ाने की जरूरत है क्या? मेरा रोल्स रॉयस एंड मर्सिडीज वाला ही तो एग्जांपल है। आई होप यू गेट दैट पॉइंट। हो गया अभी क्या? ओके, क्लियर है बच्चों? आर यू गेटिंग दिस एग्जांपल? सो दिस इज अ बायलैटरल मिस्टेक। तो बच्चों आई हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ मिस्टेक। Now you tell me, while discussing the concept of mistake, whether it is mistake of fact or whether it is mistake of law, have I used the word voidable any time? You tell me. For last 1 hour I am taking lecture. There was little bit disturbance in between. Have I used any time the word voidable? No, but you try to understand. That is what the point is. I am trying to clear that. मैंने voidable शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं, या तो void या तो valid या not necessarily void. I never use the word voidable. Voidable वो 4 facts में ही आएंगे. I hope you got the point. And एक और fact आएगा वो मैं आपको ऑक्शन सेल में बताऊंगा, ठीक है? ओके, अदरवाइज voidable शब्द वो 4 फैक्टर्स में ही आएंगे: coercion, fraud, undue influence, misrepresentation. Is that okay, student? So I continue next. बच्चों यूनिट नंबर 3 में the last point which we are supposed to discuss is, you can see the heading now, is legality of object and consideration. बच्चों in order to arise a valid contract, हमने देखा कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी टू ए पार्टी होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। कितने सारे डिस्कशन हम कर रहे हैं। वैसे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है तो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, द मेन ऑब्जेक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन आई ऑलरेडी डिस्कस्ड यूनिट नंबर 2। कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल होना चाहिए। बच्चों टाइप द वर्ड, क्या बोला मैंने? दोनों लॉफुल
होना चाहिए। ओनली लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन विल गिव अराइज टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल मतलब लीगल, ओके, अनलॉफुल मतलब इलीगल, गैर कानूनी, बरोबर है। अब बच्चों एज फार एज कंसिडरेशन इज कंसर्न, यूनिट नंबर 2 हमने पूरा कंसिडरेशन ही डिस्कस किया, समथिंग इन रिटर्न, तो वो वापस मीनिंग में नहीं भी पढ़ा हूं तो भी यू नो द वर्ड। बट व्हाट अबाउट द वर्ड ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस, द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट। आप किस पर्पस के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो? व्हाट इज योर पर्पस ऑफ फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट? पर्पस और डिजाइन ऑफ फॉर्मिंग योर कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब आपने जो सीए या सीए ज्वाइन किया, इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? धोखा देना या सीए बनना, स्मगलिंग करना या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरी बनना? तो बच्चों सीए बनना, किसी को धोखा देना नहीं। तो आपका सीए का कोर्स या सीएस का कोर्स ज्वाइन करने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? तो एक सीए बनना, गुड सिटीजन बनना, लोगों की सेवा करना, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, बराबर है। तो बच्चों ये जो दो लोग एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो दो लोगों के बीच का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने का? अगर मैं कहूँ दो लोगों के बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, टू कमिट क्राइम, टू डिफ्रॉड अदर्स, तो इसका मतलब they are forming contract but their contract is having unlawful object, and when contract is having unlawful object or contract is having any unlawful consideration, then that contract becomes absolutely void. That cannot be, in no way will be treated as valid contract. So in order to arise valid contract, legal contract, lawful contract, one must have lawful object and one must have lawful consideration. But bachcho, the point is, sir, when we consider that the object or consideration is unlawful, हमें कैसे पता चलेगा कि अनलॉफुल है कि लॉफुल है? तो लॉफुल क्या है वो नहीं बताया है, बट अनलॉफुल क्या है ना वो बताया है। लोगों को नेगेटिव चीज पहले समझ में आती है, ओके, तो नेगेटिव वे उन्होंने डिस्कस किया है।